Good morning students. Once again we are back with one more video lecture of class 10th mathematics. As you all know that we are into this time of coronavirus, so we are studying from our home. Learn from home. This is what our motto is. And as you all are in class 10, so it's one of the very important years for you people. No one knows how much time we have to sit at home and study. No one knows that when we are going to back in the school. So there will always be some problem of time. And the more you learn in this particular time, the more it will be helpful for you in the upcoming months for your board exams. So learn all things of all the subjects very properly and very seriously. So as a part of one more video lecture, now we are going to start a new chapter. Previously in the last video lecture, we have completed one chapter, the whole chapter, that was 14 statistics. I hope you remember that. Right? Now, from my part, we have completed two chapters. One we completed in school, that was probability, and one we completed here, that was statistics. So we have completed two chapters. And from my side, this is the third chapter that we are going to start. Right? And that is chapter number 11, constructions. Now students, as you all must be knowing that this is one of the very easy topic. In class 9th also you had construction, in class 8th also you had construction. So all that basic knowledge will be applicable and useful over here. Now, why this chapter is favorite to the students? There are few reasons for it. Like number one, the one most important reason is here they don't need to apply their brain a lot. It's just a kind of a simple logical drawing rather than logical steps. Second reason is this chapter is a cash marks giving this chapter. Means you don't need to refer so many reference books and so many other materials. You just refer the NCERT book and you are done. Because the constructions always comes from the NCERT textbook. So for this chapter, no need to refer any other reference book. Right? This only textbook is enough. And yes, it might be there, the numbers might be different, but the topic will remain same. So it's also one of the reasons why students like this chapter. So without wasting any more time, let's start this chapter. Before I start this chapter, I want to give you some introduction of the chapter. Although you know the name, it is constructions, so you know what is going to come. I hope you know from class 9th and class 8th that how to write in your notebook. Suppose it is the notebook of you. So obviously there are two parts of the notebook. One left side page, one right side page. So what you need to do is, you should always draw the construction on one side and write the steps on the other side of the page. Right? Don't write it, front or behind. Write it like this. One side construction, one side step. Or here construction, here steps. Whatever you like it. So that it remains in front of your eyes every time. That okay, this is construction, these are the steps. That is the only reason, no other reason for it. Now, as I said, I want to give you the introduction of this chapter. There are two parts in this chapter. In this chapter number 11, there are two parts. That means there are two exercises, 11.1 and 11.2. Both has 7 questions each. So total in 11th chapter, you have 14 constructions. If you are done with these 14 constructions, your job is done. Okay, so 14 constructions are there. 7 in point 1, 7 in point 2. These first 7 constructions in first exercise are all about this topic, triangles. We have one chapter number 6, triangles, in our syllabus of class 10th. We will be learning that later on in detail. We have so many theorems and so many topics in this triangles. But here, very simple knowledge of triangle will be required, which I will be giving you over here. So no need to worry that without chapter 6, how can we do that? Not a matter of worry.
And this second exercise, all constructions are related to circles. Each and every 7 constructions are related to circles. Again, we have one more chapter number 10, that is about circles. We have one more chapter number 12, area related to circles. So there are 2 chapters basically in our syllabus which are related to circles. But again, no need to worry. The big knowledge of those 2 circle chapters are not required. I'll give you some basic things and it's enough for you to draw the constructions, right? So there are 2 exercises, 11.1 and 11.2. Both have 7 construction each, one of triangles, one of circles. So today we are going to start with this first exercise 11.1, where there are 7 questions. Now out of these 7 questions, the first question is a bit different. It is about line segment, and the remaining 2 to 7 in 6 questions, they are basically of this topic, triangles. As I said, there are all constructions related to triangles. So first number question is different. All other 6 questions are almost same. Just starting will be different, rest all will be same. So we'll be discussing that later on. First we'll be focusing on this first construction, which is about the line segment, right? Not about the triangle. But if you learn this first construction properly, तो उसका एक हिस्सा जो है वो आपको यहाँ 2nd से 7th में काम आएगा. इसका एक पोर्शन जो है, मतलब कुछ ऐसी चीज है जो 1 से लेके 7 के साथ कंस्ट्रक्शन में आपको करनी है, चाहे वो लाइन सेगमेंट की हो, चाहे वो ट्राइंगल्स की हो, हर जगह आपको वो काम करना है. तो वो यहीं सीखेंगे तो इन सब में भी काम आएगी. ठीक है, तो ऐसे कुछ आपको एक चार्ट आपकी नोटबुक के अंदर रफली बना के रखना चाहिए जब आप ये चैप्टर लिख रहे हैं, ताकि जब फ्यूचर में रेफर करें you will come to know that what is there in the chapter. Okay, so we'll be discussing all the 14 constructions in our successive video lectures. Today let's start the 11.1 exercise and we'll be starting with the first question, जो मैंने कहा line segment के बारे में. So let us start this first question. I'm reading the first question. Okay, so now I'm erasing this chart. I hope all of you have understood and all of you have noted down also. Let's read the first question. It says, draw a line segment of 7.6 centimeter and divide it into 5:8 ratio. Measure its parts. रफली मैं आपको बताऊं, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए. कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए वो लाइन सेगमेंट? स्केल से 7.6 सेंटीमीटर का. फिर क्या बोल रहा है? उसके 2 हिस्से करिए, लेकिन 2 इक्वल हिस्से नहीं. पहला हिस्सा 5 पार्ट जितना, दूसरा हिस्सा 8 पार्ट जितना. पार्ट बोल रहा हूं, सेंटीमीटर नहीं. अगर एक हिस्सा 5 सेंटीमीटर होता, एक 8 होता, तो टोटल 13 सेंटीमीटर हो जाता. यहाँ तो हमारा पूरा लाइन सेगमेंट ही 7.6 का है, तो 13 कहां से होगा? लेकिन इस 7.6 लाइन सेगमेंट का जो टुकड़ा आपने बनाया है, उसका 2 हिस्से करने हैं. 2 हिस्से कब होते हैं? जब बीच में कोई एक पॉइंट आ जाए तो 2 हिस्से हो जाते हैं. तो 2 हिस्से हो जाए, then the first part, this one, must be 5 times, not 5 centimeter I am saying, okay? And this part must be 8 times. This is what the question is asking about. So we need to find out that in between point, that where that point would be. Once you are done with that, one more thing is required. Measure its parts. So एक बार हो जाए, फिर measure करना है कि ये टुकड़ा कितना आया और ये कितना आया. So this is what question is asking you all about. Now let's start this construction. Right? So first of all, in the answer, you must use scale, eraser, pencil, sharpener, all the geometrical instruments. Don't draw it with hand like what I am doing here. Okay? Use proper mathematical instruments before starting this chapter. Okay, so I am drawing this 7.6 line segment. So here is the 7.6 centimeter long line segment. I am giving the name AB. So it is 7.6 centimeter long line segment.
दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। ये पहला काम करना है। देखिएगा पूरी कंस्ट्रक्शन, आई विल रिपीट आल्सो। इसके बाद आपको ये करना है, इस पॉइंट ए से आपको एक रे खींच देना है, अ लॉन्ग रे, ओके, विथ व्हाट मेजरमेंट? नो मेजरमेंट्स। रे का मेजरमेंट होता भी नहीं है, रे इज ऑलवेज गोइंग इनडिफाइनाइट ऑन वन साइड, सो मेजरमेंट हो भी नहीं सकता। सो यू हैव टू ड्रॉ अ रे, अ लॉन्ग रे। अच्छा, तो क्या लॉजिक है कि कहां से ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे करें, ऐसे करें, कितना एंगल रखें? तो ये जो एंगल है उसको कोई मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखें कि दिस एंगल should be acute, means not like straight right angle, not like this obtuse. It should be acute, less than 90, whatever it could be. No need to measure, just draw it, okay? No need to measure at all. So we have drawn this one. So this is step number 2. Step number 3, on this one, okay, अच्छा यहाँ एक नाम दे दिया करिए, x, मान लीजिए ax ray है। Step number 3, on this ray make some arcs. Do you understand arc? मतलब यहां राउंडर रखिए और आर्क लगाने हैं। कितने आर्क लगाने हैं, कितना राउंडर खोलना है? नो चॉइस, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू, नो मेजरमेंट। सो ओपन अप योर राउंडर अ बिट और फिर आर्क लगा दें। यहां रखें, ये आर्क लगाया, फिर दूसरा कहां रखें, अब यहां पे रखे, ये आर्क लगाया, तीसरा यहां रखे, ये आर्क लगाया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। I have made 13 arcs. 13. Why 13? What is the logic? Logic is this. Look at this one. You must look at the question. What is the ratio we want? 5:8. तो इसके अंदर जो दो नंबर दिए हो 5:8 में 5 और 8, उन दोनों को प्लस करना है। कितना आता है? 13। तो प्लस करने के बाद जो आंसर आए उतने आर्क आपको यहां लगाने हैं। So here 5:8, so 13। अगर इक्वेशन में होता 3:2 तो हम लगाते 3 + 2 5, only 5। So here we have made 13 arcs. Okay, now you should give the names like A1, A2, this point A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 and A13. So you must give the names to all these arcs. Okay, so this was third step. First step was what? Line segment बनाओ. Second step was कोई एक रे बनाओ. Third step was इसके ऊपर आर्क खींचे, कितने? इन दोनों का प्लस मिला के कितना होता है उतने। फोर्थ स्टेप, जो ये लास्ट आर्क आया वो 13 और जो ये यहाँ लास्ट पॉइंट है B, इन दोनों को स्केल से ज्वाइन करें। यूज योर स्केल एंड ज्वाइन these 2 points. Okay, so I have joined these 2 points with scale, nothing else. After this, fifth step, इस A5 से कुछ काम करना पड़ेगा आपको। इस पॉइंट से एक यहां से काम करना है और एक यहां से काम करना है। अब ये दो आपके काम के हैं। क्यों यही दो? क्योंकि रेशियो कौन सा पूछा था? 5:8। तो पहला पार्ट 5 होना चाहिए, इसीलिए एक ये हमारे काम का पॉइंट है और दूसरा 8 होना चाहिए। सो 5 से लेके 13 होता है 8, सो दूसरा हमारे लिए ये काम का पॉइंट है। सो दीज आर द 2 मेन पॉइंट फॉर अस नाउ, A5 and A13. These are the main 2 target of me. Okay, now see what I am doing. Step number 5. सबसे पहले आपको यहाँ पे A13 पे आना है। A13 पे आके आपको अपना राउंडर रखना है। You need to put your rounder on it.
और एक आर्क लगाना है, यहाँ राउंडर रख के एक आर्क लगाना है। अगेन द क्वेश्चन कम्स, कितना खोलना है राउंडर? इट इज योर चॉइस, नो रूल्स नो रेगुलेशंस, जस्ट पुट योर राउंडर ऑन A13 and make an arc without any radius, without any measurement, no measurement, but not a big one. So make an arc from 13. Now be careful, whatever arc you have made, उतना ही राउंडर खुला रखें, राउंडर को चेंज नहीं करें। और राउंडर अब यहां लेके आए A5 के पास और वहां आर्क लगाएं, समथिंग लाइक दिस, जो यहां लगाया था। So no need to change the measurement here. Means whatever measurement you have taken over here, जितना भी यहाँ रखा था राउंडर, उतने ही राउंडर से यहाँ हाथ लगाना है, no changes. Okay? तो पहले यहाँ से हाथ लगाया, उतने ही मेजरमेंट का यहाँ लगाया। Now again come back to this point. पहले A13 पे थे, फिर A5 पे गए हम, अब वापस A13 पे आना है। अब राउंडर चेंज करना है, कितना चेंज करना है? अब आपको राउंडर मेजर करना है यहां से। ये जो आपने पहले आर्क लगाया था ये वाला, उसने जहां यहां काटा था 2 पॉइंट में, दिस 2 पॉइंट्स, आपको राउंडर से मेजर करना है यहाँ पे। मतलब राउंडर की नेक जो है वो आपको यहां रखनी है, नीडल जो है वो यहां रखनी है, राउंडर ऐसे खींचना है और यहां तक पहुंचाना है। तो राउंडर में कितना होता है मेजरमेंट, ये आपको चेक करना है। इतना राउंडर खोलना है, जो पहले आर्क लगाया है आपने, इतना राउंडर खोलना है और करना कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ मेजरमेंट लेने आए थे A13 के पास। अब वापस जाते हैं A5 के पास, जो ये मेजरमेंट यहां से लेके आए हैं हम, उसका यहां इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से। यहां से जो मेजरमेंट लेके आए हैं, अब आपको आपका राउंडर रखना है A5 पे नहीं, ये वाले पॉइंट पे। A3 नहीं बोल रहा हूं मैं बता रहा हूं A5 पे रख के जो आपने ये आर्क लगाया था, उसने जहां काटा था वो तो इंसिडेंटली यहाँ A3 है, वरना हर बार A3 हो ऐसा जरूरी नहीं। वो तो आपने जो ये आर्क लगाया था, उसने जहां काटा था उसके ऊपर रख के वो जो मेजरमेंट आप लेके आए हैं उससे ऐसे आर्क लगाना है। ओके, यहाँ जो मेजरमेंट आप लेके आए थे उससे आपको यहाँ आर्क लगाना। अब आखिरी स्टेप, वो आखिरी स्टेप ये है कि आपको जो ये पॉइंट था A5 और जो ये 2 आर्क जहां टकराए हैं ये वाला, इसको आपको ज्वाइन कर देना है स्केल से, ऐसे इसको आपको स्केल से ज्वाइन कर देना है। तो ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिखेगा, ये जो आपने ज्वाइन किया है, ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिखेगा वो बिल्कुल इससे पैरेलल दिखेगा इसके साथ। ये जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ये होगा, ठीक है? तो इसके हिसाब से ये ध्यान रखें आप बिल्कुल भी, मतलब इससे पैरेलल ये होगा। तो अब हुआ ये कि ये ड्रॉ करने से यहां जो पॉइंट आया, दिस वन, ये हमारे काम का पॉइंट है C, इसको नाम दे देंगे C। तो अपना काम पूरा हो गया। क्या था अपना काम? व्हाट वाज आवर जॉब? आवर जॉब वाज टू डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट करने थे, पहला हिस्सा 5 पार्ट जितना, दूसरा हिस्सा 8 पार्ट जितना। तो वो हमारा जॉब डन हो गया, हमने 2 पार्ट कर दिए। अब एक और चीज करनी थी, क्या लिखा था? मेजर इट्स पार्ट्स, मतलब स्केल उठाओ और स्केल से मेजर करो कि ये कितना सेंटीमीटर आ रहा है, तो लिख दो यहाँ पे AC इक्वल्स टू, और फिर ये CB इक्वल्स टू, ये दोनों कितने कितने सेंटीमीटर आते हैं वो सिर्फ लिख देना है। मतलब मान लो कि आपका ये 7.6 है, तो मान लो ये आता है 3.8, मान लो फॉर एग्जांपल ये 3.8, तो ये आना चाहिए बाकी, या 3.9 रखे चलिए, 3.9, तो बाकी आना चाहिए 3.7, तभी मिला के 7.6 होगा, वरना 7.6 होगा नहीं। हाँ होगा ये कि पहला वाला टुकड़ा छोटा आएगा, दूसरा वाला बड़ा आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 2.4 है, तो ये जो आएगा वो आएगा 5.2, 2.4 एंड 5.2। तो इस हिसाब से 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट वन स्मॉल वन, सेकंड वन बिगर वन। So we have divided this into 2 parts. Okay, so this was the first construction. Let me remind you quickly. First step,
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6। सेकंड स्टेप, ड्रॉ वन आर्क, कोई मेजरमेंट कुछ नहीं, ऐसे ही आर्क बना दो, आर्क नहीं सॉरी रे बना दो ऐसे ही। स्टेप नंबर 3, इस रे के ऊपर 13 आर्क लगाओ और उनको नंबर दो A1 A2 से लेके A13। 13 ही क्यों, रेशियो में जो दो नंबर दिए हों उनको प्लस करना है, उनका प्लस करके जितना आंसर आता है उतने आर्क लगाने हैं यहाँ पे, तो यहाँ 13 लगा दिए। नेक्स्ट वन, चौथा स्टेप, क्या करना था, इस आखिरी रे को इसके साथ ज्वाइन कर लो, ये चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से काम के आपके दो पॉइंट है वो ढूंढ निकालो, एक पांचवा और एक 13वां, क्योंकि पहला हिस्सा 5 जितना होना चाहिए था, दोनों मिला के 13 होना चाहिए था, दूसरा हिस्सा 8 जितना होना चाहिए था। तो ये दो अपने काम के पॉइंट्स है, A5 एंड A13। अब क्या करना है, पहले 13 के पास आना है, यहाँ ज्वाइन है ना, ये पहले इसके पास आना है और एक आर्क लगा देना है, कोई मेजरमेंट नहीं, नथिंग, एक आर्क लगा देना है यहाँ A13 से। फिर उतना ही आर्क, अब बिना चेंज किए राउंडर लेके जाओ, उतना ही आर्क यहां से लगाओ A5 से, जितना यहां खोल के रखा था उतना ही यहां खोल के लगाओ। तो पहले यहां पे फिर यहां पे आए, अब वापस यहां पे आओ, क्या करने के लिए, आर्क लगाने के लिए नहीं, मेजर करने के लिए। ये जो आपने ऑलरेडी आर्क लगा रखा है उसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला पॉइंट, इसके बीच में आप राउंडर से ऐसे खोल के नापें, अच्छा राउंडर में इसका इतना नाप आ रहा है, स्केल से नहीं राउंडर से, ओके इतना राउंडर खुला, इतना माप आ रहा है, उतना खुला राउंडर लेके यहाँ पे आओ, कहाँ पे, A5 से नहीं, A5 पे जो आपने आर्क लगाया था वो जो यहाँ टकराया था ना, वहां पे आओ और ये आर्क लगाओ ऐसे। तो जो पहले वाला बड़ा आर्क था उसको ये आर्क कट करेगा, ऐसे ये कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट A5 और ये वाला पॉइंट इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे लंबा खींचो, तो ऊपर जहां टकराया C पॉइंट वो अपने काम का है, वही चाहिए था हमको, तो C पॉइंट आ गया, मतलब जॉब इज डन, दो टुकड़े हो गए, बस फिर मेजरमेंट कर लो, टोटल आता है कहीं चेक कर लो, आंसर इज डन। सो ये थी पहली कंस्ट्रक्शन, आई होप आप सबको समझ में आ गई। अब स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन के साथ स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है। स्टेप्स कैसे लिखते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं, कई भूल जाते हैं, बट दे आर वेरी सिंपल, नो नीड टू मैग्निफाई, no need to expand it much, just what you have written, just what you have drawn, that is what you need to write over there। जो बनाया है सिर्फ और सिर्फ वही लिखना है, no need to कुछ भी इस पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया था, लाइन सेगमेंट, तो मैं स्टेप नंबर 1 लिखूंगा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 1 इज ओवर, सिंपल। सेकंड क्या किया था, एक रे बनाया था, इसका नाम दिया था, देखा हो तो आपने, AX। सो आई एम राइटिंग ड्रॉ एन एक्यूट एंगल रे AX, एक्यूट एंगल वाला एक AX नाम का रे बनाइए। थर्ड स्टेप, ड्रॉ इक्वल आर्क्स A1 A2 up to A13 on रे AX। रे AX के ऊपर A1 A2 A13 नाम वाले इक्वल आर्क बनाएं। हो गया स्टेप नंबर 3 पूरा। स्टेप नंबर 4, join A13 and B, join A13 and B। फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप, अब इसको जरा लिखने का समझिएगा, जो नहीं हमने किया था पहले, यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ आओ, फिर वापस यहाँ आओ, फिर यहाँ जाओ, इसको कैसे कहते हैं, इसको ऐसे करते हैं, लिखते हैं एक ही स्टेप में है। ये था क्या पता है, पहले यहाँ आर्क लगाओ, फिर यहाँ आर्क लगाओ, फिर यहाँ मेजर लो। ये हम क्या कर रहे थे पता है, ये हम जो हमने ये बनाई है ना लाइन, उसको पैरेलल एक लाइन बना रहे थे, पैरेलल, ताकि वो ऊपर काटे और हमारा काम पूरा हो जाए। तो यहाँ लिखना पड़ता है ड्रॉ नहीं, कंस्ट्रक्ट।
हमने पैरेलल लाइन सिर्फ इसको देख के स्केल से नहीं खींचती, बनाई है, इसलिए कंस्ट्रक्ट वर्ड आया, ड्रॉ नहीं आया। कंस्ट्रक्ट लाइन A5C पैरेलल टू A13B। लाइन A5C पैरेलल टू लाइन A13B, इसको पैरेलल लाइन बनाओ। लास्ट वन, गिव द नेम C to the point of intersection of A5C and AB। ये जो लाइन है और ये जो लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको क्या नाम देना है? C। मेजर AC and C। Work is done. Construction over. Simple. I hope you understand whatever we have drawn. We have written it. So job is done. कैसे होती है ये कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पूरी यहाँ पे? आई होप समझ में आ गई होगी आपको। अब हम शुरू करेंगे सेकंड कंस्ट्रक्शन, जो शुरू होगी ट्राइंगल्स के बारे में। ये था सब कुछ लाइन सेगमेंट के साथ। ओके, तो अब करेंगे हम सेकंड कंस्ट्रक्शन। ओके, so let's go for the second construction now. Second construction, अब यहाँ से ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। मैंने कहा था आपको, है ना? उसकी पहली कंस्ट्रक्शन मैंने क्या कहा था? टोटल कितनी कंस्ट्रक्शन है इस एक्सरसाइज में? 7। उसमें से पहली एक लाइन सेगमेंट के बारे में और 6 ट्राइंगल्स के बारे में। अब मैं इस चार्ट को और आगे बढ़ाता हूँ। इन 6 में भी 2 फ्लेवर है। कौन से 2 फ्लेवर बता रहा हूँ, बाकी है सारी एक ही टाइप की, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड 4, 5, 6। रफली बताता हूं मैं आपको। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल 4, 5, 6। मान लीजिए 4, 5, 6 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल बनाओ, तो ये बनाया। देन कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्राइंगल, ऐसा एक और ट्राइंगल बनाए, मतलब ये ABC नाम हो तो आपको एक और ट्राइंगल बनाना है इसमें। वो कैसा होना चाहिए? whose sides are in the ratio 2/3। नया ट्राइंगल बनाओ जिसकी साइड्स इसकी साइड से 2/3 हो। अब पता होगा ना, नेक्स्ट के सिंपल फंडा छोटे स्टैंडर्ड का। 2/3 रेशियो मतलब न्यूमरेटर छोटा नंबर है, डिनोमिनेटर बड़ा नंबर है, तो ये रेशियो लेस देन 1 कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 2 chocolates and you have 3 person to eat, so everyone will get less than 1, not equals to or more than 1. But if you have something like this, 4/3, numerator is big, denominator is small, then your answer is greater than 1, right? 4 chocolates and 3 person, so all will get more than 1. So ratio can be less than 1, ratio can be more than 1. So that is why I am saying, out of these 6 questions, sometimes ratio will be less than 1, sometimes ratio will be more than 1. तो जिसमें रेशियो लेस देन 1 हो उसमें थोड़ा अंतर आएगा बनाने में, जिसमें रेशियो मोर देन 1 हो उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। इस हिसाब से आपको समझना है कि रेशियो लेस देन 1 है या मोर देन 1 है तो मुझे क्या चेंज करना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखेंगे, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ओके, सो हियर व्हाट इज दैट? हियर रेशियो इज लेस देन 1। अगर रेशियो लेस देन 1 हो तो आपका जो नया ट्राइंगल है वो पुराने ट्राइंगल के अंदर आएगा और उससे छोटा आएगा। जैसे ये हो गया, इसको मैं नाम दे दूं A' and C'। ये पॉइंट तो था ही पहले से ही, तो अंदर आएगा। अगर आपका रेशियो लेस देन 1 है तो नया ट्राइंगल अंदर आएगा। और जब अगले क्वेश्चन आएंगे उसमें भी एक ओरिजिनल ट्राइंगल दिया होगा, उसमें दूसरा ट्राइंगल बनाना हो और रेशियो अगर मोर देन 1 हो तो नया ट्राइंगल जो है वो उस पुराने ट्राइंगल से बाहर जाएगा। कैसे बाहर जाएगा? कुछ इस तरीके से बाहर जाएगा, ऐसे। मतलब नया ट्राइंगल कुछ ऐसे बनेगा, होगा उसके साथ ही लेकिन थोड़ा बड़ा बनेगा उससे। तो वो जब आएगा तब सीखेंगे। हाल फिलहाल तो ये देखते हैं। तो याद रखिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाए, व्हाट यू नीड टू फर्स्ट लुक एट इज रेशियो इज लेस देन 1 और रेशियो इज मोर देन 1। उसके हिसाब से आपको तय करना है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस कंस्ट्रक्शन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राइंगल विद साइड 4, 5, 6, 4, 5, 6 वाला एक ट्राइंगल बनाओ
याद रखें ये स्केल से नहीं बनाना, ये कंस्ट्रक्शन करनी है। तो सबसे पहले कोई एक साइड, सारी साइड्स नहीं, कोई एक साइड, जैसे यहाँ 5 सेंटीमीटर की मान लीजिए नीचे की साइड, ये आपको स्केल से खींचनी है। 5 सेंटीमीटर वाली साइड, 4, 5 और 6 ऐसे हम बनाएंगे तो 5 वाली आपको स्केल से खींचनी है। अब आपको राउंडर लेना है और उसका मुंह जो है वो 4 सेंटीमीटर खोलना है। तो स्केल लेंगे, स्केल के ऊपर 0 से लेके 4, 1 से 4 नहीं, 0 से 4, 0 से लेके 4 तक इतना राउंडर खोलेंगे। राउंडर खुल गया इतना, फिर बी पे रख के आर्क लगाएंगे ऐसे हवा में, ऐसे। अब दूसरी बात, राउंडर 4 हो गया, 5 तो ड्रॉ हो चुका है, अब 6, तो स्केल पे राउंडर को 6 तक खोलेंगे, ओपन अप टिल 6, ओके। फिर यहां रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे लाइक दिस। बोथ आर्क विल डेफिनेटली intersect like they are intersecting here. Give that point name A. Now with scale join this two, with A join this two, तो बन गया ये 4, 5 and 6 सेंटीमीटर साइज वाला ट्रायंगल डन। ओके, नाउ तो पहला हिस्सा पूरा हो गया क्वेश्चन का, 4, 5 and 6 साइज वाला ट्रायंगल बनाओ। अब अगला नया ट्रायंगल बनाना है जिसके अंदर साइड जो है वो उससे भी छोटी हो, मतलब अंदर आएगा। अब ये कैसे करना है समझ लीजिए। अब पहले कंस्ट्रक्शन की तरह चलेगा, इस बी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाओ, सॉरी एक रे लगाओ, लाइक फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। एक आर्क लगा दिया, एक रे लगा दिया। अब इसके ऊपर आर्क लगाने, इसको नाम दे दो एक्स, बी एक्स, इसके ऊपर आर्क लगाने। अब यहां थोड़ा सा चेंज है, पिछली बार हम क्या करते थे, 2 और 3, अगर ये दो नंबर हैं तो दोनों को प्लस करते थे, 2 + 3 5, तो 5 आर्क लगाते थे। यहां प्लस नहीं करना है, यहां प्लस नहीं करना है, यहां इन दोनों में से बड़ा नंबर देखना है। कौन सा है? 3, तो सिर्फ 3 आर्क लगाने, 1, 2 और 3, ओनली 3 आर्क। वो प्लस कब करना है? जब लाइन सेगमेंट वाली कंस्ट्रक्शन। अब सेकंड से लेके 7th नंबर तक की जो 6 कंस्ट्रक्शन आएंगी ट्राइंगल की, उनमें प्लस नहीं करना है, सब में उनमें से जो बड़ा नंबर हो उतने आर्क आपको लगाने हैं। बड़ा नंबर कौन सा है? 3, तो 3 आर्क लगाने हैं। नंबर दे दीजिए, यहाँ पे नाम दे दीजिए, इट इज B1, इट इज B2, इट इज B3। अब प्रोसेस सेम, ये लास्ट को लास्ट के साथ ज्वाइन करें जैसे वहां किया था, है ना, लास्ट को लास्ट के साथ ज्वाइन करें, कर दिया। अब वो जो पैरेलल लाइन वाली बनाई थी पिछली बार हमने आखिरी स्टेप में, वो करना है यहाँ पे। कैसे करना है? पहले ये B3 और ये B2, ये अपने काम के 2 बंदे हैं। ये B2 क्यों? पहला टुकड़ा 2 था ना, और फिर 3 था, इसलिए B3, तो ये 2 हमारे काम के हैं। तो करना आपको ये है, B3 पे आपको राउंडर रखना है, B3 पे, और एक आर्क लगा देना है अपनी मर्जी का, विदाउट एनी मेजरमेंट। कैसे भी राउंडर खोले, एक आर्क लगा दें। कहाँ रखे? B3, पहले यहाँ रखा। अब B2 पे आप पिछले सब की तरह कर रहे हैं, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो B3 पे रख के लगा दिया, अब B2 पे रख के लगा रहे हैं, तो B2 पे रख के वही आर्क बिना चेंज किए, जितना मेजरमेंट यहाँ लिया था आर्क लगाने का उतना ही यहाँ लगाएंगे, है ना। तो ये हो गया दूसरी बात। अब वापस से नीचे आएंगे, क्या करने के लिए? मेजरमेंट करने के लिए। याद होगा आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां से लेके यहां तक इतना मेजर करेंगे, सिर्फ मेजर करेंगे बस। फिर यहाँ काम पूरा, फिर ऊपर आएंगे। ऊपर कहाँ पे? B2 पे नहीं, B2 के कारण जहां कट किया था वहां पे, यहाँ, और वो जो मेजरमेंट लेके आए हैं उसका आर्क लगा देंगे, और फिर B2 के साथ इस आर्क को ज्वाइन कर लेंगे, B2 के साथ इस आर्क को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसे आएगा। और न्यारी बात, फिर से बता दो क्या करना था? B3 पे रख के आर्क लगाओ, कोई भी अपनी मर्जी का, फिर उतना ही खुला रख के B2 पे आओ, आर्क लगाओ, फिर वापस नीचे आओ, मेजरमेंट लो, वापस ऊपर आओ,
कहाँ P2 पे नहीं, वो P2 के कारण जो आर्क हुआ था वहां पे, यहाँ पे, और वो आर्क लगाओ और इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया। आखिरी स्टेप, यही काम दूसरी बार करना है। कैसे? अब यहाँ के लिए करना है। एक ये ऐसे आया, अब एक ये अंदर जाएगा, तभी तो अंदर नया छोटा ट्राइंगल बनेगा। तो यही काम दूसरी बार करना है। कैसे करना है? जैसे यहाँ किया था पहले, जैसे ये ज्वाइन था वैसे अब ये ज्वाइन है। यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो, ई मान लो। तो जैसे यहाँ किया था, ये दो आपके काम के पॉइंट थे, ऐसे अब आपके काम के दो पॉइंट ये हैं, एक सी और एक ई। वही काम करो जो यहाँ कर रहे थे। पहले सी के पास रखो राउंडर, अपनी मर्जी का आर्क लगाओ, नो नीड टू टेक एनी मेजरमेंट कि ऐसे यहाँ लिया था वो यहाँ लो, नहीं, कोई जरूरत नहीं, एनीथिंग। तो सी पे रख के एक आर्क लगा लिया। अब उतना ही खुला रखना है राउंडर, बदलना नहीं है। अब कहाँ आना है? ई के पास, और आर्क लगा देना है हवा में, ई के पास आर्क लगा देना है। अब वापस से सी के पास आना है, सी के पास रख के ऐसे हवा में आर्क लगा देना। अब वापस से सी के पास आना है और मेजर करना है। कितना मेजर करेंगे? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। इतना मेजर करके फिर यहां आएंगे जो काटा था, ई के पास नहीं, जो काटा था वहां से, और ऐसे आर्क लगा देंगे जो यहां से मेजर करके लाएं, और सी और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। जॉब इज डन। यहां कुछ नाम दे दो डी। यू कैन सी ओवर हियर अंदर एक नया ट्राइंगल बन गया, ये वाला। मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, दिस वन। ये था वो ट्राइंगल जो हमको चाहिए था, स्मॉल का, बन गया अंदर ट्राइंगल। सो ये तो कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई। वापस से आपको स्टेप्स लिखने हैं बाजू वाले पेज पे। आई एम नॉट राइटिंग हियर, आई टॉट यू इन द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप जो ड्रॉ करो वही इंग्लिश में लिखना है, दैट इज इट, नो चेंज। हाँ, एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ ये वाली कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या था? 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाया था, क्योंकि हमको 4, 5, 6 बनाना था ना, तो 5 वाला बनाया। फिर 4 आर्क लेके एक आर्क लगाया, 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, दोनों आर्क जहां काटे उनको ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ओरिजिनल ट्राइंगल बन गया। अब यहां से एक रे खींच दिया, उसके ऊपर 3 आर्क लगाए। 3 ही क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर देखना था। 3 आर्क लगाए, 3 आर्क लगा दिए, उसके बाद लास्ट वन को लास्ट के साथ ज्वाइन कर दिया। फिर वो पहले कंस्ट्रक्शन की तरह यहाँ आर्क लगाओ, दूसरे रख के आर्क लगाओ, लेकर करने आओ, यहाँ आर्क लगाओ, मतलब ये 2 पैरेलल लाइन बनेगी। यही काम दूसरी बार रिपीट करना है। अब यहाँ इसको पैरेलल बनाना है, तो एक बार यहाँ रखो, एक बार यहाँ पे रखो, सो वापस दूसरी लाइन बनेगी। तो इस तरीके से 2 पैरेलल लाइन बन गई और अंदर ये ट्राइंगल बन गया। सो जॉब इज डन। So this was second question. You need to write down the steps anyhow without forgetting. Okay, don't forget. So with this we want to wind up this today's session because time is already done. So we are winding up today's session. Before we wind up, your homework for today will be the same 2 questions. Exercise 11.1, question number 1 and 2. Same 2 questions which I taught you here. You need to draw it properly. तुम्हें इसे draw करना है. Okay? ये draw हो जाए, then your homework is done. Fine. So जब अगले लेक्चर में मिलेंगे, we'll be talking about few more constructions. Question number 3, question number 4, and so on. Okay? So that's it for today's session. Thank you so much for attending my next session. Wish you all a very good day and take care of yourself and your family. Thank you. Have a good day. Stay home. Stay safe. Thank you.